Good morning, children. In our previous classes, we have studied about construction of some triangle by using side criteria. Means if all the three sides of triangle is given, then how we can construct the triangle. Similarly, we have also learned side angle side. Like supposingly if two sides and one angle is given, then how we can construct the triangle. Now we will be discussing some of the questions of exercise 10.4, how we can do the construction. Like in the first question, the question is construct triangle ABC. हमें रफ डायग्राम जो होगा हमारा, this is triangle ABC. Okay. In this, measure M stands for measure. M का क्या मतलब है? Measure. Measure of angle A is equal to 60 degree. Angle A की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है. एंगल B की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है. मैं डायरेक्ट डायग्राम में शो कर दे रही हूं. एंड AB इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो जो दो एंगल दिए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड साइड होनी चाहिए. दोनों एंगल से जुड़ी हुई साइड ही हमें मिलनी चाहिए. दो एंगल के बीच वाली साइड होनी चाहिए. देन ओनली दिस कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल. अगर आपको AB की जगह BC या AC दिया होता, then we cannot do this construction. Okay. Now this is our rough diagram. One side and two angles are given. So the very first thing we will make, that is AB. Okay. So draw a line segment AB of 5.8 centimeter. This we will do with the help of ruler. Okay. Now at point A, we can see there is angle 60 degree. ठीक है. And 60 degree we can make with compass. This is semicircle. The very first angle is 60 degree. Okay. Now angle B is equal to 30 degree. So again at B semicircle, first is 60 और जो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा, that will be 30 degree. Half of 60 is 30. So I will cut an arc from this point with this point with same radius. Radius में change नहीं करनी है. Now when I will join it like this, this is 30 degree and this is 60 degree. पहला आर्क 60 होता है and this is 0. Okay, 0, 60, then 120 like that. Okay, 0 और 60 के बीच में क्या आ गया? 30 degree. So at A draw an angle of 60 degree. At B draw an angle of 30 degree and name the intersecting point as C. Therefore, triangle ABC is the required triangle. In the same way, we can write steps also. Like steps of construction also in the same way, the way we have drawn. First one, draw a line segment. This is this line segment. Draw a line segment AB is equal to 5.8 centimeter. Okay. Second thing, at A, draw an angle of 60 degree. अब आपको ये नहीं बताना है कि 60 डिग्री आपने कैसे बनाया. Just mention that at A draw an angle of 60 degree. Then third point, at B draw an angle of 30 degree and name the intersecting point as C, क्योंकि वो तभी इंटरसेक्ट करेगा. And name the intersecting point as C. Therefore, triangle ABC is the required triangle. Okay, this is a symbol for triangle. You can write complete triangle also. So in this way, simple rough sketch, then diagram and then steps. Now similarly in question number 2, construct triangle PQR. Let's draw the rough sketch. Triangle PQR. Okay, this is triangle PQR. PQ is equal to 5 centimeter. ये हमें दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर. एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल. दिस इज एंगल 105 डिग्री एंड एंगल QRP means this angle is given. This is angle QRP is 40 degree. Okay, now just you can look at this rough diagram properly. जो साइड है, एक्चुअल में जो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जो साइड दी हुई है उसी के दोनों तरफ के एंगल मालूम हो
तो ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर ये दो एंगल मालूम है तो अभी हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सपोजिंगली आपने 5 बना दिया, फिर आप ये 105 डिग्री भी बना दोगे, फिर 40 डिग्री कहाँ बनाओगे, लाइक कितनी दूरी पे 40 डिग्री बनाओगे, दैट इज नॉट डिसाइडेड। तो इसीलिए इस डिटेल के साथ कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। बट वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R is equal to 180 degree. Reason is angle sum property of triangle. Okay, so angle P की वैल्यू, एंगल P हमें निकालना है, 105 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 degree minus 145 degree. So angle P we will get as 35 degree. Okay, तो इस तरीके से हमें एंगल P मिल गया है। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, PQ बनाएंगे 5 सेंटीमीटर, फिर P पे बनाओगे 35 डिग्री एंगल। दिस एंगल वी कैन ड्रॉ विद प्रोटेक्टर बिकॉज दिस वी कांट ड्रॉ विद कंपास। फिर हम एंगल Q पे कितना बनाएंगे, 105 डिग्री, एंड वी विल नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज R। फिर इस 40 का कोई रोल नहीं है, 40 का रोल कहाँ है, सिर्फ एंगल P को निकालने में। इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपको निकालना, शो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू विल नॉट शो दिस यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही है। एग्जामिन वेदर, हमें एग्जामिन मतलब टेस्ट करना है, एग्जाम करो, उसका टेस्ट करो। क्या टेस्ट करना है, वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF। DEF है ट्राइंगल का नाम, DEF। हमें चेक करना है कि क्या हम ये DEF नाम का ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं। अगर EF इज इक्वल टू 7.2 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7.2 इजिली बन जाएगा। देन एंगल E इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है, ये भी बन जाएगा। एंड एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। देखो वैसे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। जबकि आप यहाँ पे इन दो एंगल को जोड़ोगे ना, 110 प्लस 80, तो ये कितना बन जाएगा, 190। तो ये ट्राइंगल मीट करेगा ही नहीं, ठीक है। एक एंगल मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 110 डिग्री का एंगल और 80 डिग्री का एंगल किसी एक पॉइंट पे मीट करे। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। रीजन, बिकॉज sum of 3 angle of triangle is 180 degree, but here on adding only 2 angles only I am getting more than 180, ठीक है। दो एंगल को प्लस करके 180 से ज्यादा आ रहा है, तो तीसरा एंगल की तो जगह ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज sum of 2 angles is more than 180 डिग्री। बहुत सिंपल सा रीजन है, विच इज अगेंस्ट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये भी आप ऐड कर सकते हो उसमें, विच इज अगेंस्ट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 10.4 भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फॉर अनदर एक्सरसाइज वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।